Hallelujah. Thank you, Jesus. Blessed be the name of the Lord. Hallelujah. Shalom. Shalom. Hallelujah. Thank you, King of Glory. We come before you, King of Glory. We come before you, Son of the Most High God. We come before you, the Alpha and the Omega, the beginning and the end. We come before you, for you are the way, the truth, and the life. We come before you. Hallelujah. We come before you, bread of life. We come before you, bread of life. We come before you, the shepherd of a soul. For you are the good shepherd. You lay down your life for us. Hallelujah. We come before you, light of the world. Light that shines in the darkness, expels all the darkness. Hallelujah. We draw nigh unto you. Hallelujah. 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 We draw nigh unto you, the Alpha and the Omega, the beginning and the end, the Lion of the tribe of Judah, true, trustworthy, faithful. Amen. We come before you, hallelujah, this evening. We lift up your holy name. We exalt you, Lord. We exalt you. We pray that your penetrating presence will descend upon us. Your holy, sacred presence will descend. Hallelujah. 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 We pray for your presence to descend. We pray for your holy presence to fall upon us. May your presence penetrate this telecast. As people log on from India, from different parts of the world, Holy Spirit, you will come and you will capture our hearts. Hallelujah. Tera dhanyavad. Tera dhanyavad. Unleash angels. May the angels protect the frequencies. May the angels protect the airwaves and the radio frequencies. Hallelujah. Hallelujah. May there be no disturbance, Father. May the angels carry your word. Hallelujah. Hallelujah. Anyone that comes under the voice of your servant, which is your voice, may that life be impacted for your glory. Tera dhanyavad, tera dhanyavad, tera dhanyavad, dhanyavad. Lord, we bless you. Hallelujah. Dhanyavad ho. Hallelujah. Lord, we bless you. Lord, we bring you evening sacrifice. We bring you praise. We bring you honor. We bring you glory, strength, and power and majesty. Hallelujah. And we exalt you, Jesus of Nazareth. Jesus, Jesus of Nazareth. Jesus, Jesus of Nazareth. King Jesus, we exalt you. King Jesus. King Jesus, King Jesus, King Jesus, we exalt you, exalt you, exalt you. Hallelujah. 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 Dhanyavad, 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 dhanyavad. Hallelujah. Lord, we bless you. Hallelujah. प्रार्थना कीजिए आप सभी, आप जहाँ जहाँ हैं, कनेक्टेड हैं, प्रार्थना करें कि आज परमेश्वर का आत्मा बड़ी कसरत के साथ, बड़ी सामर्थ के साथ, नए अभिषेक के साथ हमारे जीवनों के अंदर काम करे। हालेलुया। प्रभु, हम अपने जीवन तेरे चरणों में रखते हैं। हालेलुया। हालेलुया। लब लब थके आना मिले आया राम, लब लब थके आना मिले आया राम, चंगा करे मैनू तेरा कलाम, चंगा करे मैनू तेरा कलाम, ला किनारे तू खेवन हारे, ला किनारे तू खेवन हारे, पर रूदे नाल खाली दिल सारे, पर रूदे नाल खाली दिल सारे, कर किरपा तू सिरजन हारे, कर किरपा तू सिरजन हारे। हालेलुया। Thank you, Jesus. Jesus, we bless you. Lord, we praise you this evening. खुदावंद, हम तेरे दूतों को खोलते हैं, यस्सु के जलाली नाम में फरिश्तों को खोलते हैं। May the angels descend. May the angels draw the hedge. Hallelujah. And Lord, we pray for the Holy Spirit to come like a gushing fountain, cleansing fountain,
May your Holy Spirit come like wind, ruach. May your Holy Spirit come like precious fire that will burn the chaff away, that will melt and cleanse and remove the dross out of the gold and make us precious and pure for Jesus. Hallelujah. तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरे नाम की हम महिमा करते हैं। हालेलुया। तेरी स्तुति करते हैं दयालु प्रभु, तेरे नाम को हम ऊंचा करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद 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 हो, तेरी स्तुति हो प्रभु यीशु मसीह, तेरी स्तुति हो। हालेलुया। इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के जलाली नाम में मांगते हैं। आमीन। सुबह में परमेश्वर के वचन में से बहुत शक्तिशाली परमेश्वर का वचन है जो आपके साथ मैं बांट रहा हूँ। मैं आपको जजेस की बुक में जल्दी लेके जाता हूँ। आज हम बहुत सी बातें और सीखेंगे परमेश्वर के कलाम में से। तो मैं चाहता हूँ आप जजेस की पुस्तक, न्यायियों की पुस्तक निकालें, उसका दूसरा अध्याय। मैंने आपको बताया सुबह इस्राएल न्यायियों के समय ऑलमोस्ट 400 ईयर्स न्यायियों ने इस्राएली लोगों को जज किया। न्यायियों को सोफटीम कहते हैं। और न्यायियों की पुस्तक में एक बड़ी पिक्यूलियर फ्रेज है, लगभग 3 बार रिपीट हुई। वो न्यायियों की पुस्तक का लास्ट चैप्टर, उसकी लास्ट वर्स भी है। वहाँ पे लिखा है, सिंस देयर वाज नो किंग इन इजराइल इन दोज डेज सो एवरीबॉडी जस्ट डिड व्हाट प्लीज टू देयर हार्ट। क्योंकि इजराइल में कोई राजा नहीं था, इसलिए इजरायली लोग वही करते थे जो उनके दिल को अच्छा लगता था। इजराइल में राजा नहीं, इजराइल में व्यवस्था नहीं, इजराइल में कोई अगुवा नहीं, इजराइल में कोई आध्यात्मिक नेता नहीं। इसलिए इजराइल का आत्मिक पतन, और इजरायली लोग अपने दिल की डिक्टेट को सुनते थे। जो दिल कहता वो करते थे। कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार चलता नहीं था। खैर, ये पूरी बुक ऑफ जजेस के अंदर बार बार आपको मिलेगी। उनका रूहानी जीवन ऐसे था, रोलर कोस्टर। और मैं आपको बता रहा था कि इस्राएली लोग, पहले अध्याय को जब हम पढ़ते हैं न्यायियों की पुस्तक में, उन्होंने पहाड़ों पे चढ़ना सीख लिया, लेकिन उनको तराई के अंदर से गुजरना नहीं आया। दे ऑलवेज लॉन्ग्ड फॉर द माउंटेन टॉप, दे नेवर लर्न्ड हाउ टू कोप आउट विद द वैलीज। तराइयों में युद्ध कौशल सीखना, तराइयों में युद्ध करना सीखना इस्राएल ने नहीं सीखा। आपको मालूम, अगर आप पढ़ेंगे, बहुत विचित्र बात है, जब आप तराइयों के बाइबल के अंदर अध्ययन कीजिए वैलीज का, ओल्ड टेस्टामेंट में, मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ, जस्ट गो फॉर वर्ड वैलीज इन द एंटायर ओल्ड टेस्टामेंट। आपको मिलेगा सभी वैलीज जो है वहाँ पे शिडीम्स रहते हैं, फॉलन एंजल रहते हैं, हाइब्रिड रहते हैं, दुष्ट आत्माओं का वास है तराइयों के अंदर। इसलिए राजा दाऊद 23 भजन में कहता है, चाहे मैं मौत की तराई की वादी में से गुजरूं, लेकिन वो मौत की तराई की वादी ओरिजिनल हिब्रू में नहीं है। इवन दो आई वॉक थ्रू द वैली ऑफ शैडो ऑफ डेथ, इट्स अ वैली वेयर देयर इज अ शैडो ऑफ डेथ। इन द वैली यू डू नॉट हैव द सनशाइन। Inside the valleys there are Nephilims, there are giants, there are supernatural human beings, and in the valleys, मैंने आपको बताया था, पहले अध्याय का 19 वचन मैंने आपको पढ़ के दिया था सुबह। पहले अध्याय के 19 वचन में लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, क्या था वहाँ पे, because they had chariots of fire, because they had chariots, the inhabitants of the valley, because they had chariots of fire। वहाँ पे जायंट्स थे, उनके पास चैरियट्स ऑफ आयरन, एक्सक्यूज मी, उनके पास चैरियट थे लोहे के। इसलिए इस्राएली कठिन चीज़ों को बाईपास करते थे, कंफर्ट जोन में चले जाते थे। दान तो पूरा पहाड़ की ओर भाग गया। आपको माउंटेन टॉप के आनंद का क्या पता होगा अगर आप वैली में नहीं गए। वैली के अंदर योद्धे तैयार किए जाते हैं, शूरवीर तैयार किए जाते हैं। वैली के अंदर आप मौत को आंख में आंख डाल के देखते हो। वैली के अंदर, वैली आपकी प्रेपरेशन है। आपके ऊपर जो किंगली अनॉइंटिंग है, मैं आपको बता रहा था, वो वचन पूरा नहीं हुआ कि एक अनॉइंटिंग है प्रीस्ट की, एक अनॉइंटिंग है प्रॉफिट की।
लेकिन अल्टीमेट बाद की अनॉइंटिंग है किंगली, राजा की। किंगली अनॉइंटिंग बहुत डिमांडिंग है। किंगली अनॉइंटिंग की प्रेपरेशन बड़ी डीप है। नॉट ऑल वॉक इन किंगली अनॉइंटिंग। हालेलुया। डेविड लर्नड इन द वैलीज। The life of David, the early part of David's life, where David saw all the miracles. डेविड ने जब यहोवा परमेश्वर की सुपरनेचुरल पावर को देखा, वो सब वैलीज हैं। इला की वैली में उसने किसको देखा? किसको देखा? दाऊद ने जायंट को देखा, हाइब्रिड को, नफलीम को। शाऊल राजा जो है वो उसको हेड ऑन देखना नहीं चाहता है, सबसे लंबा चौड़ा है, दाऊद जाता है। और आपको मालूम राजा शाऊल दाऊद को अपने वेस्चर पहनाता है लड़ाई के मैदान के पूरे। तो दाऊद बोलता है ये मुझे फिट नहीं आते, मैं तो छोटा हूँ उसके लिए, और वो पहनता नहीं और जाता है अपने उसी गडरिए के पहरावे में और पत्थर लेके जाता है और गोफन से जब मार देता है इतने बड़े जायंट को, फिर उसका सर उसी की तलवार से काटता है, फिर उसी की तलवार उठा लेता है। उससे बाद में दाऊद युद्ध लड़ता है दानव की तलवार से। पहले उससे राजा के बस्तर नहीं फिट आ रहे थे। ही लर्न टू स्ले द जायंट्स इन द वैलीज। इसराइली कंफर्ट जोन चाहते हैं। आपको मालूम, मैंने आज सुबह आपको बताया वैली हैं जो हमने पढ़ा हिब्रूज के अंदर। मैंने आपको कुछ वर्सेस दिए थे अगर आपको याद हो। हिब्रूज के अंदर सुबह मैंने आपको वर्सेस दिए 11th चैप्टर में। It's about people who lost their lives. It's about people who were running around as vagabonds. It's about people who were sawn asunder. It's about people who starved, who perished, who died, who could not see victory. उन लोगों के विषय में, वो वैलीज के लोग हैं। और 11th चैप्टर हॉल ऑफ फेमर्स का चैप्टर है इब्रानियों में। उसमें विश्वास के योद्धाओं की बातें की, उन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया, उन्होंने ये युद्ध जीता, उन्होंने वो मिरेकल देखा, वो साइन देखा, वो वंडर। लेकिन उसी के बीच में उनका भी जिक्र है जो मारे मारे फिरते रहे, जो सताए गए, टॉर्चर किए गए, मार दिए गए, जो जंगलों के अंदर घूमे, जो भेड़ों और बकरियों की स्किन पहन के मारे मारे भटकते रहे। दे नेवर सो एनी मिरेकल। They never saw God giving them breakthrough and delivering them from death, from persecution, from jails, from suffering, from starvation. नहीं बचाया यहोवा ने उन्हें। तो आप क्या सोचते हो, जब यहोवा ने उनको दुखों में से जाने दिया, मुसीबतों में से जाने दिया, परसिक्यूशन में से जाने दिया, वो मारे गए, वो तुच्छ जाने गए, वो दरिद्रों की तरह भागते रहे, क्या उस समय जलाल नहीं यहोवा का जाहिर हुआ? यहोवा का जलाल सफरिंग में भी है। यीशु मसीह ने दिखाया क्रूस पे वो जलाल, सबलिम ग्लोरी मैनिफेस्टेड ऑन द क्रॉस एज ही सफर्ड। तो वैली के अंदर का अनुभव नहीं है इस्राएल को। इसलिए क्या लिखा वचन में, उनको उनकी मिरास मिली नहीं। वो जिस एरिया में गए इज़राइल के जो यहोवा ने दिया, वहाँ से नफलीम नहीं निकले, हाइब्रिड नहीं निकले, वो शैतान का बीज नहीं निकला। वो राजे उनके बीच में बस गए, असिमिलेट हो गए। और वचन में क्या लिखा है, आज बहुत गहरी बातें आपको बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा आप और इन्हें लिखिएगा इधर भी, अपने हृदय की तख्ती पे भी, और नोट्स भी बनाइएगा। 2 अध्याय उसका मैं आपको 11 वचन देना चाहता हूँ। Judges chapter number 2 verse number 11. And the children of Israel did evil in the sight of the Lord and served Baalim. किनकी पूजा की उन्होंने? मैंने आपको बोला आपका बालीम कौन है। आपको मालूम बालीम का मतलब क्या होता है? बालीम का मतलब होता है हस्बैंड, ऑनर, पोजेसर। कौन आपको पोजेस, किसकी प्रॉपर्टी हो आप, किसकी ओनरशिप है आपके ऊपर? इज़राइल ने किसको अपना हस्बैंड बना लिया? याहवे को छोड़ दिया और बालीम को, बाल देवता को अपना पति बना लिया। और क्या लिखा है? एंड दे फॉरसुक द लॉर्ड गॉड ऑफ देयर फादर्स which brought them out of the land of Egypt and followed other gods, the gods of the people that were round about them, and bowed themselves unto them and provoked the Lord to anger. इज़राइल ने क्या किया?
इज़राइल ने उन जातियों के 11 ऐसी अनकॉन्कर्ड हाइब्रिड जनरेशन्स हैं जो इज़राइल के अंदर सिमिलेट हुई। वो उनके बीच में रहे, उन्होंने अपनी बेटियों की शादी उनके साथ कर दी, उन्होंने उनकी बेटियां अपने बेटों के संग ब्याह दी। प्रभु ने क्या कहा था कि इनके साथ अपनी बेटियां मत ब्याहना, ना अपने बेटों के लिए इनकी बेटियां लेना, क्योंकि तुम अगर ऐसा करोगे ये तुम्हारी आंख में कांटों की तरह चुभेंगे। बहुत सारे विश्वासी लोग हैं, बड़े विश्वास की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन अपनी बेटियों को अन्य जाति को ब्याहते हैं, बेटों के लिए अन्य जाति की लड़कियां लाते हैं। जब परीक्षा की घड़ी आती है तब प्रभु को नहीं चुनते। और शैतान क्या करता है? आपके पूरे डीएनए का सत्यानाश कर देता है, आपकी आने वाली जनरेशन्स को खींच के ले जाता है शैतान। आपने जो भक्ति की, जो साधना की, जो प्रभु के पीछे चले, अरे भैया सारा गया, मिट्टी में मिल गया। तो इन्होंने क्या किया? दे फॉरसुक द लॉर्ड गॉड ऑफ देयर फादर्स, यहोवा को त्यागा और बाल की। आपको मालूम बाल जो है, सुनिए मैं कुछ नोट्स पढ़ता हूँ। बाल वॉज द चीफ डिएटी ऑफ एंशंट केनन, कनानियों का देवता है। कौन है कनान? हाइब्रिड है, सैतानिक बीज है इसके अंदर। हाम का पोता है जिसके ऊपर कर्स है, समझ रहे? हाँ, नूह ने उसको कर्स किया है और वो मिक्स्ड है, हाइब्रिड है। His exploit and licentious worship practices are well documented in the literature of ancient Ugaritic। यूगरिट टेक्स्ट पढ़ेंगे आप, उसके मैंने यूगरिट टेक्स्ट पढ़ा है, उसके अंदर आपको सारी डिटेल मिलेंगी। कौन कौन सी शैतानी पूजा करते थे, कौन कौन सी जादूगरी थी, टूना था, कैसे ये सेक्सुअल ऑर्जीज थी इनकी, शरीर की वासना का नंगा नाच कैसे होता था इनके देवताओं के आगे। द सन ऑफ एल, कौन था ये? एल कैनानाइट पैंथियन का सबसे बड़ा देवता है। एल का बेटा है बाल। बाल को क्या कहा जाता है? बाल वॉज बोथ ए हेरोइक फिगर एंड अ स्टॉर्म गॉड। स्टॉर्म गॉड है बाल। एंड फर्टिलिटी डिएटी हु वॉज वर्शिप्ड इन मैनी कल्ट सेंटर अंडर वेरियस फॉर्म्स एंड एम्फेसिस। हैंस बालीम, प्लूरल है बाल का, बालीम का मतलब पति। कौन है ये? इसकी कई कल्चर के अंदर ये स्टॉर्म गॉड है, तूफान लाने वाला देवता है। अलग अलग नाम से इसकी दुनिया के अलग अलग पैंथियन में पूजा होती है। और दूसरी कौन है यहाँ पे? अश्तरोथ। अश्तरोथ देवी है। पहला राजा 11 का 5 पढ़िएगा, पहला राजा 11 का 5 मार्क कर लीजिए, उसे पढ़िएगा। अश्तरोथ नोन फॉर फ्रॉम द लिटरेचर यूगरिट एंड ऑफ फनीशिया वॉज अ गॉडेस ऑफ इरोटिक लव एंड वॉर। इसके टेम्पल के अंदर बिना वस्त्र के औरतें रहती थी और खुली जनाकारी और सेक्सुअल ऑर्जीज होती थी, और ये सेक्सुअलिटी की और वॉर की देवी थी। शी वॉज नोन एल्सवेयर इन दी नियर ईस्ट एज इश्तार, इसी को इश्तार कहा गया है। और अष्टराटे, पहला राजा 11 का 5 पढ़िएगा, पहला राजा 11 का 33 पढ़िएगा, दूसरा राजा सेकंड किंग्स 23 का 13 पढ़िएगा, लिख लीजिए ये वर्सेस। The veneration of this goddess entered into the Mediterranean world under the names Astarte, and practices associated with the cult became associated with the Greek goddess of love, Aphrodite। Aphrodite का नाम सुना आपने? उसी का नाम मडोना है, Aphrodite, goddess of love। उसी एफ्रोडाइटी के इधर बच्चा है एस्टराटे के, जिसकी पूजा कर रहा है एक बहुत बड़ी चर्च। वो मरियम नहीं है, वो अष्टराटे है, वो सेमिरामिस है, निम्रोद की पत्नी भी है, माँ भी है, और वो तमूज है उसका बेटा, जिसे सूअर मारता है और जो जी उठता है। वो फर्टिलिटी कल्ट है जिसके अंदर अंडों को रंग किया जाता है, जो इस्तार आप मनाते हो, जो यहोवा के वचन में नहीं है। ये यहोवा के वचन में नहीं है, ये पेगन कल्चर बाइबल के अंदर घुसे। यहोवा इनसे घृणा करता है। यहोवा क्या कहता है जिर्मिया को? उस ट्री की जो तू घर में लगाता है, इसराइल को कहता है, जिस ट्री की तुम पूजा करते हो, आई हेट दैट ट्री, द लॉर्ड सेज। जिसको आप घर में लगाते हो दिसंबर के महीने में और उसकी पूजा करते हो, वो सिंबल है फर्टिलिटी का। अध्ययन कीजिए वचन का। और क्या लिखा है यहाँ पे? यहाँ पे लिखा है ग्रीक एफ्रोडाइटी है। शी वॉज ऑल्सो अटारगेटिस इन एश्केलोन। एश्केलोन एक गढ़ था नफलीमों का, वहाँ पे अटारगेटिस इसका नाम है। द कैनानाइट वर्शिप राइट्स वर कैरिड आउट नॉट ओनली इन द टेम्पल। ये आराधना के काम
कनानी लोग एक टेम्पल में करते थे। दूसरा राजा 10 अध्याय 21 से 27 वचन पढ़िए। दूसरा राजा 10 अध्याय 21 से 27। लेकिन ये कहाँ करते थे? हिल टॉप पे भी करते थे, पहाड़ों के ऊपर भी करते थे, और अंडर एवरी ग्रीन ट्री, ग्रीन ट्री के नीचे करते थे। हालेलुया। ओपन सेक्सुअल ऑर्जीज। 2 किंग्स 17 चैप्टर 10 और 11 वचन पढ़िए। दूसरा राजा 17 अध्याय का 10-11 वचन। दीज राइट्स वर अकम्पनीड बाय थिंग्स एज फ्रेंजीड डांसेज। पहला राजा 18 का 26 से 28 पढ़िए। डांस करते थे लोग मूर्तियों के आगे। कल्ट प्रोस्टिट्यूशन, और ये दोनों प्रोस्टिट्यूशन होते, होमोसेक्सुअल भी होता था, लिस्बियन भी होता था, दोनों तरह का प्रोस्टिट्यूशन होता है। एट टाइम्स इवन बाय ह्यूमन सेक्रीफाइस, दे यूज टू इवन कट लिविंग ह्यूमन बीइंग, उनका ब्लड ड्रिंक करते थे। आप पढ़ सकते हैं यिर्मयाह नबी की पुस्तक 19 अध्याय का 5 से 7 वचन, यिर्मयाह चैप्टर 19 वर्सेस 5 to 7, और उसको मिला के देखिए 2 किंग्स 23 वर्स नंबर 10, यिर्मयाह 7 वर्स नंबर 30 to 32, यिर्मयाह 32nd chapter verses 30 to 35. Read these scriptures at home. Israel's attraction to debased fertility rite and idolatrous worship practices, as well as loathsome lifestyle of Canaan, was to be a long one. Despite repeated divine warnings and chastisement, बहुत सजा आई इनके ऊपर, वार्निंग भी नबियों ने दी, लेकिन फिर भी वार्निंग कहाँ है? लेवी व्यवस्था 20 अध्याय पढ़ लीजिए। गिनती की पुस्तक 25 का 1 से 9 पढ़ लीजिए। व्यवस्था विवरण 18 का 9 से 14 पढ़ लीजिए। व्यवस्था विवरण 23 अध्याय का 17 वचन पढ़ लीजिए, 18 वचन पढ़ लीजिए। पहला राजा 21 अध्याय का 25 वचन से 25 और 26 वचन। दूसरा राजा 17 अध्याय का 7 से 18 वचन तक। यिर्मयाह 2 का 1, यिर्मयाह 3 का 5, इज़िकियल 8 का 5 से 18, इज़िकियल 16 का 23, होशे नबी 4 अध्याय के 6 से 19 वचन पढ़िए, जहाँ पे ये शैतानी प्रैक्टिसेस हैं जो इज़राइल करता था। 13 वचन इसका पढ़ें। दूसरा जजेस 2nd चैप्टर वर्स नंबर 13, दे फॉरसुक द लॉर्ड एंड सर्व्ड बाल एंड अश्तरोत। यहोवा को त्यागा और एक देवी रखी अश्तरोत, फर्टिलिटी गॉडेस सेक्स की, और एक देवता ऑर्जीज का, जिसकी वो उपासना करने लगे। एंड द एंगर ऑफ द लॉर्ड वाज हॉट अगेंस्ट इजराइल, एंड ही डिलीवर्ड देम इनटू द हैंड्स ऑफ द स्पॉयलर्स दैट स्पॉइल्ड देम, एंड ही सोल्ड देम इनटू द हैंड्स ऑफ देयर एनिमीज राउंड अबाउट देम, सो दैट दे कुड नॉट एनी लॉन्गर स्टैंड बिफोर देयर एनिमीज। क्या करता है प्रभु? गौर से सुनिए, इजराइल की हिस्ट्री पढ़िए। जब इस्राएल अन्य जाति के देवी देवताओं की पूजा करता है, जीवित यहोवा को त्यागता है, आपको मालूम 11 अध्याय उत्पत्ति की पुस्तक में जब बाबुल का बुर्ज बन रहा है, 10 अध्याय उत्पत्ति की पुस्तक में पढ़ के देखिए, 70 संतानें हैं नूह के 3 बेटों की, 70 परिवार हैं, 70 जेनेटिक पूल्स हैं, 70 काइंड के जिनोम हैं। देर आर 70 रेसेस दैट केम आउट ऑफ 3 सन्स ऑफ नोआ। परमेश्वर यहोवा 70 वॉचर की कौंसल के साथ आया, 70 की कौंसल के साथ आया। उसने कहा आओ हम नीचे जाके देखें, मनुष्य बुर्ज बना रहा है। तो उन 70 जजेस के डिवाइन कौंसल के हवाले कर दी 70 नेशन, उनके ऊपर वो 70 जजेस रूल कर रहे हैं। जब डैनियल प्रार्थना करता है, कहाँ पे? पर्शिया में, क्योंकि उनकी छुटकारे का समय आ रहा है। तो वचन में लिखा है पर्शिया के ऊपर जो प्रिंस है, पर्शियन प्रिंस, सार पर्शिया लिखा है हिब्रू में, वो गैब्रियल को रोक लेता है। ये कौन है सार पर्शिया? ये वही वॉचर हैं, ये वो यहोवा की डिवाइन कौंसल है जिनको यहोवा ने इन 70 कौमों के ऊपर राज्य करने के लिए दे दिया, को रिजेंट बना दिया, वासल किंग बना दिया इनको। और प्रभु यहोवा ने कहा तुम इनके ऊपर शासन करो, तुम इनका सारा हिसाब मुझे दोगे। 82 भजन पढ़िएगा, साम 82, यहोवा उनका न्याय कर रहा है। कोर्ट रूम लगाया यहोवा ने साम 82 में। वो सभी के सभी भ्रष्ट हो गए हैं, 70 के 70, दे आर फॉलन। एंड गॉड इज सेइंग यू वर बिनाई एलोहीम, तुम परमेश्वर के पुत्र थे पर तुम मनुष्यों की तरह मरोगे।
उनका भी न्याय हो। ये पूरी सृष्टि, दुनिया के अलग अलग मुल्क, दुनिया की अलग अलग सल्तनतें, एम्पायर, सिविलाइजेशंस, दुनिया की बादशाही, दुनिया का जितना सिस्टम है, निज़ाम है, पॉलिटिकल हो, डेमोक्रेटिक हो, मोनार्की हो, रिपब्लिकन हो, डिक्टेटरशिप हो, किसी भी तरह की गवर्नमेंट, सरकारें, हुकूमतें, हर दुनिया की इकॉनमी, हर दुनिया की मार्केटिंग बिजनेस, हर दुनिया का एजुकेशनल सिस्टम, हर दुनिया का हेल्थ केयर सिस्टम, हर दुनिया का जर्नलिज्म, हर दुनिया का एंटरटेनमेंट मीडिया, इन सब के ऊपर राज्य कर रहे हैं फॉलन वॉचर। गैब्रियल ने कहा, वो मेरे से मुझे रोक रखा उसने, माइकल ने आया और उसको डिथ्रोन किया और मैं आया हूं, अब मैं फिर जा रहा हूं वहीं, फिर वो चला जाएगा सार पर्शिया, अब दूसरा प्रिंस आएगा यूनान का, क्योंकि अगली किंगडम आ रही है। इस तरह हर मुल्क, हर देश के ऊपर ये प्रभुता कर रहे हैं। परमेश्वर यहोवा डायरेक्ट इनके ऊपर रूल नहीं कर रहा, क्योंकि उसने त्याग दिया पृथ्वी की कौमों को। पढ़िएगा 32 ड्यूटरॉनमी चैप्टर 32 वर्स नंबर 8 ओरिजिनल मैसोरेटिक टेक्स्ट में, असली जो कलाम के अंदर वहां लिखा है, जब यहोवा ने पृथ्वी की हदें बना दी, अलग अलग कौम को अलग अलग हद में, अलग अलग मुल्क में बसा दिया, अलग अलग कल्चर, अलग अलग सिविलाइजेशन के लोगों को, तो यहोवा ने उनको बनाए इलोहीम के हवाले कर दिया। लेकिन बहुत सारे बाइबल इवेंजेलिकल बाइबल स्कॉलर्स ने उसको बोला सन्स ऑफ इजराइल। नो नो नो, इट्स नॉट सन्स ऑफ इजराइल, इट्स द डिवाइन काउंसिल, द वॉचर। 70 के हिसाब से बांट दिया, एक एक मुल्क के ऊपर। हमारे मुल्क इंडिया पे भी एक वॉचर राज कर रहा है, जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है उसके नीचे है। पॉलिटिशियंस के माइंड को वो कंट्रोल कर रहा है, इकोनॉमिस्ट के माइंड को, ब्यूरोक्रेट्स के माइंड को, मिलिट्री के माइंड को, एजुकेशन इंडस्ट्री के माइंड को, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, जर्नलिज्म के पूरे निज़ाम को वो ऊपर से कंट्रोल कर रहे हैं वॉचर। समझ रहे हैं? लेकिन इज़राइल एक ऐसी कौम है, 11 अध्याय में वो दुनिया को त्यागता है, 12 अध्याय में एक व्यक्ति को आवाज़ लगाता है जिसका नाम अब्राम है, वो भी मूर्ति पूजक है, उसे दर्शन देता है। 7 अध्याय प्रेरितों के काम 2 वचन में लिखा है, उसे यीशु मसीह दर्शन देता है और उसे कहता है, मैं तेरे में से एक कौम निकालूंगा और तेरी औलाद आकाश के तारों जैसी, रेत के कण जैसी होगी। तेरी जो कौम होगी वो मेरे नीचे रहेगी। आपको मालूम, एक कौम है पृथ्वी में जिसका नाम है इज़राइल, जिसके ऊपर वॉचर का राज्य नहीं है। फॉलन एंजल रूल नहीं करते उसके ऊपर रूल कर रहा है माइकल एंजल। डैनियल नबी की पुस्तक पढ़िएगा। इज़राइल के ऊपर एक फरिश्ता है, सबसे पावरफुल एंजल है, जो लूसीफर को हराता है, बांधता है, कुचलता है, उसका नाम है माइकल। इज़राइल डायरेक्टली यहोवा की कस्टडी के नीचे है, इसलिए इज़राइल की हस्ती मिटाना चाहता है शैतान, पर मिटा नहीं सकता। हालेलुया। तो यहाँ पे क्या लिखा है? इन्होंने यहोवा को त्यागा। और क्या लिखा है? यहोवा परमेश्वर क्या करता है? पूरी बाइबल पढ़ें, जिन देश, जिन मुल्क के लोगों के देवी देवताओं की उपासना करते हैं, यहोवा उन्हीं के इनको गुलाम कर देता है, उन्हीं की। फिर यहोवा के आगे दुहाई देते हैं, रोते हैं, फिर यहोवा इन्हें छुड़ा लेता है। ये इज़राइल की हिस्ट्री है। अब इनके संग क्या हुआ? क्यों इनके शत्रुओं को यहोवा ने हराया नहीं? आपको मालूम, ये थोड़ा हरा रहे थे, जो नफलीम रह रहे थे, हाइब्रिड रह रहे थे, सुपरनैचुरल जायंट रह रहे थे बनी इसराइल की धरती के अंदर। उनको कौन हरा रहा था? यहोवा हरा रहा था। यहोवा ने उनको हराना बंद कर दिया, इसलिए वो बीच में रह गए। अब आप पढ़ें जल्दी से। नाउ दीज आर द नेशंस विच द लॉर्ड लेफ्ट। ये वो राष्ट्र हैं जिनको यहोवा ने क्या किया? छोड़ दिया, इजरायलियों के बीच में रहने के लिए। जन्म पाया, पवित्र आत्मा पाया, अन्य भाषा बोले, सामर से भर गए, आपके दिल में आग लगी पवित्र जीवन जीने की। ये कलाम, ये आपको अपनी जान से भी प्यारा था। आप प्रभु के सच्चे सेवकों के संग संगति रखते थे, प्रभु के लिए भजन गाना, गीत गाना आपको भाता था। आप प्रभु के लिए सब कुछ देने के लिए, जो आपकी जेब में होता था, प्रभु के लिए देने के लिए राजी होते थे। आपके दिल में तलब थी कि मैं संगति करूं। आप छुप छुप के कमरे के अंदर घुस के प्रार्थना करते थे, रोने लग पड़ते थे प्रभु के आगे। ऐसा निर्मल जीवन था आपके पास।
लेकिन आप धीरे धीरे घसे पिटे ईसाई बन गए हो। खत्म होगी वो ज्योति आपके अंदर, खत्म होगी वो आग, खत्म होगी वो भूख, खत्म होगी वो प्यास। आपने सोचा मैं समझदार हो गया, मैं मैच्योर हो गया, मैं परिपक्व हो गया। शैतान ने आपको धोखा दिया। आपके जीवन के अंदर यहोवा आपके शत्रुओं को हरा रहा था। उसने कहा लड़ाई मेरी, मैं हराऊंगा। आपके जीवन में जनाकारी थी, पराई औरतों के साथ गलत काम करने की कामना, पराई स्त्रियों के बदन को निहारने की गंदी आदत थी, गंदी फिल्में देखने की, गंदी तस्वीरें देखने की, आधी रात को कहीं इधर उधर ऐसा करने की, या पैसे का लालच था आपको, आप धन इकट्ठा करना चाहते थे, लोभी थे आप, या अहंकारी थे, घमंड आपके जीवन में था, या बनावटीपन बहुत था आपके बाहर, आप मास्क लगा के घूमते थे, बनावट का दिखावा करते थे, या आपके जीवन के अंदर नफरत थी, या दूसरों को आप तुच्छ जानते थे, या आपके मुंह के अंदर चुगली करने की गंदी आदत थी, या आपके जीवन के अंदर संसारी चीजों का मोह था, प्रेम था संसारी चीजों का, या आप झूठ बोलते थे, या आप नशे करने की गंदी लत थी। ये सारे हाइब्रिड थे, बदरुएं थी, दुष्ट थे। यहोवा ने कहा मैं तेरे अंदर आ गया, मैं इन सबको हरा दूंगा। लेकिन आप तराई में गए नहीं। आपने कहा मुझे तराई में नहीं जाना, मुझे सेल्फ डिनायल का, अपने आप को इनकार करने वाला जीवन नहीं चाहिए, मुझे क्रूस उठाने वाला जीवन नहीं चाहिए, मुझे तो चमत्कारों वाला, मौजों वाला जीवन चाहिए। मुझे माउंटेन टॉप पे ले जाओ, माउंटेन टॉप पे चमत्कार, मौजे, हालेलुया, बड़ा अमीन, बड़ी बरकत। मुझे ये शोशा चाहिए, दिखावा चाहिए। मुझे तराई की वादी के अंदर जाके हथियार चलाना, यहोवा से रणनीति लेना, युद्ध करना, मृत्यु की वादी में से होके गुजरना, अपने शरीर को मारना, हालेलुया। इस जिस्म की ख्वाहिशों को, जिस्मानी चीज़ों की ओर से मन हटा के स्वर्गीय चीज़ों की ओर मन लगाना। ये जो सुसमाचार है ये आपको हेवन से कनेक्ट करता है। प्रभु के वचन कुलिस्सियों की पत्री में प्रेरित पौलुस कहता है पुट योर माइंड ऑन द हेवनली थिंग्स। अपने मन को स्वर्गीय चीजों के ऊपर लगाओ, स्वर्गीय चीजों पे मनन करो, स्वर्गीय बातों की ओर निहारो, हालेलुया। लेकिन यहोवा ने आपके शत्रु छोड़ दिए आपके अंदर। व्यभिचार, काम वासना, गंदी तस्वीरें देखना, चुगली करना, निंदा करना, पैसे से बहुत प्यार करना, डॉलर, पाउंड, स्टर्लिंग, समझ रहे कैसे दबा दबा के रखते हो आप, उससे प्रभु से ज्यादा प्यार करते हो। सोना, चांदी, हीरे, मोती, प्रतिष्ठा चाहिए, लोग जाने आप कितने महान हैं, लोगों के सामने बड़े बनना, बनावटीपन, दिखावा। ये शत्रु यहोवा ने आपके अंदर से निकाले नहीं, वो बीच में ही रह गए इज़राइल के साथ, उनके अंदर ही रहने लग पड़े। क्योंकि आपकी जंग यहोवा ने लड़ी, मालूम पता है क्यों नहीं? क्योंकि आपने बालीम ही बदल लिया, आपने पति बदल लिया। उसके शरण में आए थे, आग लगी रहती थी अंदर। मैं बता रहा हूं, मैं साइकिलों पे घूम घूम के प्रचार करता था, आज भी वही आग है मेरे अंदर, वही आग, कोई दिखावा, कोई बनावटीपन नहीं। उसी आग को लेके मुसलसल चल रहा हूं जो 30 साल पहले लगी थी। कमरे के अंदर घुस घुस के दिन में 20-20 बार प्रार्थना करता था, रोता था, बरबस आंसू, कई बार रात पूरी रोता था यहोवा के आगे। और सड़कों पे जाके, चौकों पे जाके, चौराहों पे जाके, रेलवे स्टेशनों के अंदर, ट्रेन्स के अंदर, बसेस के अंदर, फैक्ट्री के अंदर, स्कूल्स के अंदर, जहां ईंटें बनती, भट्टों के अंदर, जहां भी मनुष्य मिलता था, पहाड़ पे, घाटी पे, तराई पे, यीशु मसीह को बांटता था। प्लेन्स में भी बांटता हूं, प्लेन्स में डरता नहीं किसी से मैं। यहोवा ने सारे शत्रु निकालने थे, लेकिन निकाले नहीं। क्यों? क्योंकि इन्होंने बालीम बदल लिया, ये बाल और अश्तोरेत के पीछे चले गए। तो लिखा है whithersoever they went out the hand of the Lord was against them। 2 अध्याय का 15 वचन। वो जहां कहीं गए यहोवा का हाथ उनके विरोध में था। यहां पे लिखा whithersoever they went out the hand of the Lord was against them for evil। The hand of the Lord was against them to do evil to them, as the Lord had said, and as the Lord had sworn unto them, they were greatly distressed। बहुत बुरा हाल हुआ बनी इस्राएल का। तो अब देखिए, मुझे लगता है कल भी मुझे ये कंटिन्यू करना पड़ेगा, ये बहुत पावरफुल मैसेज है।
सेकंड चैप्टर के अंदर आइए, सेकंड चैप्टर की फर्स्ट वर्स से पढ़िएगा। हालेलुया। यहाँ लिखा है एंड एन एंजल ऑफ द लॉर्ड केम अप फ्रॉम गिलगाल। कहाँ से आया? गिलगाल। गिलगाल क्या है? गिलगाल वो जगह है जब यहोशू इज़राइल को लेकर आया गिलगाल, सारे इसराइलियों का खतना किया गया, शरीर को काट दिया गया, मांस को काटा गया, शरीर की कामना, शरीर की वासना, शरीर की अभिलाषा को काट के फेंक दिया वहाँ पे। वो जगह है गिलगाल। गिलगाल का मतलब है योर रिप्रोच हैज़ बीन रोल्ड अवे। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर ने तुम्हारे अपमान को, तुम्हारे अपयश को, तुम्हारी बदकारी को रोल अवे कर दिया। हालेलुया। और गिलगाल से कहाँ आया? बोकीम में आया यहोवा का दूत। और कौन है ये यहोवा का दूत? मैंने आपको सुबह बताया था। कौन है ये यहोवा का दूत? ये थियोफनी है, ये मसीह यीशु है जो एंजल के रूप में दिखाई देता है। हालेलुया। ये कोई एंजल नहीं है भाई और बहनों, ये वही है जो हमारे पुरखे इब्राहिम के साथ 18 अध्याय उत्पत्ति की पुस्तक में बातें करता है। 3 आते हैं, सेंटर में प्रभु यीशु मसीह है, लेफ्ट राइट पे एंजल हैं। और इब्राहिम पहचानता है क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं तुम्हारे पुरखे इब्राहिम ने मुझे देखने की कामना की। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय का 56 वचन। और यीशु मसीह कहते हैं उसने मुझे देखा। तो यहूदी कहते हैं तू तो 50 साल का भी नहीं है, हमारे पुरखे इब्राहिम को मरे हुए 2000 वर्ष हो गए। तो यीशु मसीह क्या कहते हैं? बिफोर इब्राहिम वॉज आई एम। इब्राहिम से पहले मैं हूं। और आपको मैंने बताया था सुबह कि प्रभु जब कहता है मैं हूं का मतलब होता है हाइया अशर हाइया। हाइया अशर हाइया, बोले मेरे साथ, हाइया अशर हाइया। ये यहोवा परमेश्वर ने कहा मूसा से, जब मूसा ने यहोवा परमेश्वर का नाम पूछा, हाइया अशर हाइया, मैं जो हूं सो हूं। यीशु मसीह ने जो बोला उसे यूहन्ना ग्रीक में लिख रहा है। और ग्रीक में आपको मालूम यीशु मसीह क्या कहते हैं? आगो एमी, आगो एमी। बिफोर इब्राहिम वॉज आगो एमी। इब्राहिम तो वॉज है, इब्राहिम तो था, लेकिन मैं हूं, यीशु मसीह कहते हैं। यीशु मसीह अनंत मैं हूं। यीशु मसीह कभी भी मैं था नहीं है। यीशु मसीह मैं हूं। एक ही है इस ब्रह्मांड में जो मैं हूं, जो आगो एमे, जो क्या है? आगो एमी, आगो एमी, जो हाइया अशर हाइया है, उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। ये वही जो इब्राहिम को जिसने दर्शन दिया, इब्राहिम ने उसके आगे झुक के सजदा किया, उसकी उपासना की। 2 फरिश्ते चले गए लूत को बचाने के लिए, लेकिन इब्राहिम उसके साथ वार्तालाप करता रहा। प्रभु अगर 50 हुए, प्रभु अगर 40 हुए, प्रभु अगर 30 हुए। हालेलुया। आपको मालूम ये वही जिसका दर्शन इब्राहिम ने पाया, प्रेरितों के काम 7 अध्याय के 2 वचन में लिखा है। और यीशु मसीह ने खुद कहा वो मेरे दिन को देखना चाहता था। ये वही है जिसके साथ हमारा पुरखा याकूब मल्ल युद्ध कर रहा था, और जिसे कहता मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं जब तक तू मुझे बरकत ना दे। हालेलुया। ये वही मैंने आपको बताया आज न्यायियों की पुस्तक 13 अध्याय के 11 वचन में, जो मनोहा फैमिली के साथ, मनोहा की पत्नी जब घास काटती है उसको आके दर्शन देता है, मनोहा को दर्शन देता है और उन्हें बताता है कि मैं तुम्हें आशीष दूंगा। हालेलुया। ये वही है जब हमारा पुरखा इब्राहिम इसहाक को जगवेदी के ऊपर रख देता है, और वो एंजल जो प्रकट होता है, वो एंजल कोई एंजल नहीं है, वो एंजल खुद यहोवा है, यहोवा पुत्र है। वो बोलता है मैं जान गया कि तू मुझसे प्रेम करता है, मैं तुझे बढ़ाऊंगा, मैं तुझे फलवंत करूंगा, मैं तुझे आशीषित करूंगा। हालेलुया। दानियल नबी की पुस्तक 3 अध्याय के 25 वचन में ये वही है जिसे एक अन्य जाति का राजा जिसका नाम नबूकदनेस्सर है, आग की तपती हुई भट्टी के अंदर नजर डाल के देखता है, कहता है 3 पुरुष डाले गए थे, ये चौथा पुरुष कौन है? ये जलाली पुरुष कौन है? ही इज लुकिंग लाइक द सन्स ऑफ गॉड्स। वो है ये यहोशुआ हामशियाक। हालेलुया। मरियम की कोख में देह धारने से पहले उसके पास एक जलाली देह है। मरियम की कोख में जब वो आया, वो उसकी शुरुआत नहीं है, वो अनादि है। हालेलुया। उसका कोई बिगिनिंग नहीं है, उसकी कोई शुरुआत नहीं है, उसका कभी कोई अंत नहीं होगा। मरियम की देह के अंदर, कोख के अंदर उसने एक जलाली शरीर धारण किया। उसने कहा एक देह तूने मेरे लिए तैयार की है। वो देह यहोवा ने तैयार की डायरेक्टली। वो देह माता पिता के क्रोमोसोम से नहीं बनी, वो देह पवित्र आत्मा के द्वारा बनी है।
परमेश्वर की ज्योति, परमेश्वर का जलाल मरियम की कोख में समा गया। उस जलाल ने एक जलाली शरीर तैयार किया, वो खमीरी रोटी है। हालेलुया। वो जलाली दे मानव जाति के छुटकारे के लिए पृथ्वी पे आई। वो दे धर्म चलाने, धर्म बनाने, धर्म परिवर्तन करने के लिए नहीं आई। वो खमीरी रोटी नया समाज बनाने के लिए नहीं आई। वो खमीरी रोटी इस पृथ्वी पे, इस धरातल पे उतरी ताकि मानव जाति के लिए एक महायज्ञ करे और उस यज्ञ में उस अखमीरी रोटी की आहुति दे दी जाए और उसके जलाली खून से, रक्त से मनुष्य जाति के पाप धो दिए जाएं। उस जलाली दे ने मौत को हराया है, पताल को हराया है। आपको मालूम, उस अखमीरी रोटी ने पताल हरा दिया, मौत हरा दी, शियोल हार गया, सारे नरक दूत परास्त हुए और वो अखमीरी रोटी जीत गई है। उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। ये वही जिसका यशाया दर्शन देखता है 6 अध्याय में। राजा धीराजा को सिंहासन पे देखता है और कहता, हाय मैं कितना अशुद्ध हूं। एक नबी कहता है, हालेलुया, क्योंकि मैं शुद्ध लोगों के बीच में वास। ये वही है जो गिदियन को दर्शन देके कहता, माइटी वॉरियर द लॉर्ड इज विद यू। ये वही है जो बनी इसराइल का जंग लड़ता है। वही है जो लाल समुद्र को फाड़ देता है। ये वही है जो दबोरा और बराक के बीच में आके खड़ा हो जाता है, मैं रोज बन के। मैं रोज वहां पे लिखा है, हालेलुया। ये वही जलाली यीशु है, हालेलुया। यहां पे लिखा, द एंजल ऑफ द लॉर्ड केम फ्रॉम गिलगाल। गिलगाल से आया, जहां पे शरीर को काट दिया जाता है, और बोकीम में आया। आपको मालूम बोकीम का मतलब क्या होता है? बोकीम का मतलब जहां रोया जाता है, रोया जाता है। कहां लेकर आ रहा है एंजल? बोकीम में। यह समय रोने का है। मैं देख रहा हूं बहुत सारे प्रचारक अभी भी झूठी भविष्यवाणी करने से बाज नहीं आ रहे, अभी भी मोटिवेशनल प्रीचिंग कर रहे हैं। लोगों को उभार के ये नहीं कह रहे कि तौबा करो, पश्चाताप करो, प्रभु के चरणों में विलाप करो, प्रभु के पास आओ, अपने पुरखों के बाप दादों के पापों का जिम्मा लो, आइडेंटिफाई करो, उपवास रखो, तुरी फूको, यहोवा की शरण में आके माफ़ी मांगो। लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। बोकीम में आया, बोकीम का मतलब विलाप, जहाँ पे विलाप किया जाता है। हाल आपको मालूम विषम में क्या हो रहा है? कनाडा के अंदर लॉ पास हो गया कि अगर आप किसी होमोसेक्सुअल या लेस्बियन पास्टर को कोई ऑर्गेनाइजेशन कनाडा में ऑर्डेन करने से मना करती है तो उन्हें सू कर दिया जाएगा, उनका टैक्स एग्जेम्पशन स्टेटस खत्म कर दिया जाएगा। स्वीडन के अंदर लॉ बन गया है कि आप होमोसेक्सुअल लेस्बियन के खिलाफ नहीं बोल सकते। ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ये रीसेंट ईयर की बात कर रहा हूँ, 2020 और 2019 के एंड की, ऑस्ट्रेलिया में लॉ बन गया, यू कैन नॉट प्रोपोगेट हेट लिटरेचर। बाइबल के उन हिस्सों को जहाँ पे लेस्बियन होमोसेक्सुअल के खिलाफ यहोवा परमेश्वर सजा देता है, उसके प्रचार को अब हेट लिटरेचर कहा जा रहा है कि इस नफरत को आप फैला नहीं सकते। अमेरिका की बहुत सी स्टेट्स के अंदर ये चीज़ें बैन हो रही हैं। यूरोपियन यूनियन के अंदर मसौदा आया था कि बाइबल के अंदर से सेगमेंट निकाल दिए जाएं क्योंकि ये हेट लिटरेचर हैं। आपको मालूम एक्यूमेनिकल मूवमेंट आ रही है, सर्व धर्म को इकट्ठा करके लेके चलना है, और इसको स्पीयर हेड कर रही है रोमन कैथोलिक चर्च। क्रिस्लाम आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर फैल चुका है क्रिस्लाम, कि इस्लाम और क्रिश्चियनिटी दोनों एक ही हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस्लाम का परमेश्वर और बाइबल का परमेश्वर अलग हैं। हमारा परमेश्वर जिंदा यहोवा लश्करों का रब है। हमारा परमेश्वर यहूशा हामशयाक है। हालेलुया। दुनिया के नियम, दुनिया के कानून बदलते जा रहे हैं। कोरोना इसलिए आया है ताकि दुनिया का निज़ाम बदला जाए। नोहा हाइड लॉज आ जाएंगे बहुत ही जल्दी। मिलिट्री मार्शल लॉज लगा दिए जाएंगे संसार के अंदर। अभी भी आपको देखिए, बंद कर दिया है घर के अंदर। संसार बहुत तेजी से बदलता जा रहा है, दुनिया बहुत तेजी से बदलती जा रही है। यूरोप ऑलरेडी कंगाल हो चुका है स्पिरिचुअली। इंग्लैंड के अंदर बड़े वियर्ड लॉज हैं जो मसीहों के खिलाफ हैं। आपको मालूम, मैं आपको बता रहा था, सूडान के अंदर 20 लाख क्रिश्चियंस को मारा गया पिछले 12 साल के अंदर। यमन में और नॉर्थ अफ्रीका के कई कंट्रीज में मसीहों का सफाया कर दिया गया।
कई लाख, 2 मिलियन से ज़्यादा क्रिश्चियंस को इराक के अंदर मार दिया गया सिस्टमेटिकली। फिलिपीन के एक इलाके में जहाँ मुस्लिम बाहुबल है, वहाँ बहुत सारे मसीह लोगों को बुच्चर कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। ईस्ट टाइमोर एक जगह है, वहाँ पे कई लाख क्रिश्चियंस को मार दिया गया इस्लामिक जिहादियों के द्वारा। आप कभी सुनेंगे नहीं कि यूएन में कोई आवाज़ उठी, आप कभी सुनेंगे नहीं वर्ल्ड फोरम पे किसी जगह ये आवाज़ उठाई गई। परसिक्यूशन सिस्टमेटिकली बढ़ती जा रही है। ये संसार बहुत रैपिडली बदलता जा रहा है। मसीह लोग तराई में नहीं जाना चाह रहे, पहाड़ की चोटी पे जाना चाह रहे हैं, पहाड़ की चोटी में रहना चाह रहे हैं। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, डोंट फॉलो मैन, फॉलो जीसस, फॉलो द होली स्पिरिट। आपको मालूम, इज़राइल के जो गोत्र थे, इनमें से एक टुकड़ी थी जो यहूदा के पीछे चली, क्योंकि यहूदा के अंदर यहूदा के बब्बर शेर, उसके लॉयन में यहूदा का बब्बर शेर था, वो विजय पाते गए, लेकिन दूसरी टुकड़ी ने विजय नहीं पाई। पढ़ के देखिए, सारे हाइब्रिड उनके बीच में रहे, हाइब्रिड जनरेशन उनके बीच में रही। 2 अध्याय का मैं एक वचन आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ, 2 का 10, ध्यान दीजिए मेरी तरफ। 2 अध्याय 10 वचन। एंड ऑल्सो ऑल द जनरेशन वर गैदर्ड अनटू देयर फादर्स, एंड देयर अरोज अनदर जनरेशन आफ्टर देम विच न्यू नॉट द लॉर्ड, नॉट येट द वर्क्स विच ही हैड डन फॉर इज़राइल। एक पीढ़ी उठी जो यहोवा को नहीं जानती थी, यहोवा का ज्ञान चला गया। वो पीढ़ी उन्होंने बालिम बदल लिया, वो बाल की और अष्टोरेत की उपासना करने लगे, क्योंकि एक नेक्स्ट जनरेशन लीडरशिप की तैयार नहीं की गई। और पढ़ेंगे आप 11 वचन में लिखा है, एंड द चिल्ड्रन ऑफ इज़राइल डिड ईवल इन द साइट ऑफ द लॉर्ड एंड सर्व्ड बालिम। क्योंकि परमेश्वर के वचन की ट्रेस नहीं रही, लीडरशिप नहीं थी, अगुवे नहीं थे, अगली जनरेशन, अगली पीढ़ी को तैयार नहीं किया गया, परमेश्वर के कलाम की बटान अगली जनरेशन को सौंपी नहीं गई, अगली जनरेशन को मशाल पास ऑन नहीं की गई। हालेलुया। आपको मालूम, इस समय जो अपोस्टेट चर्च है, वो कलीसिया जो उठाई नहीं जाएगी जब प्रभु आएगा, वो कलीसिया ताकतवर हो रही है, शक्तिशाली हो रही है, और सच्ची जलाली कलीसिया कमज़ोर हो रही है। आपको मालूम एक वजह क्या है? कि जो पिछली जनरेशन थी, आपको मालूम ये वायरस ने क्या किया है? अमेरिका में उसे बेबी बूमर जनरेशन कहते हैं, उसको ख़त्म कर रहा है ये वायरस। जो बुज़ुर्ग पीढ़ी है, जो यहोवा के मार्गों को जानती है, जो यहोवा के संग चली है, वो पीढ़ी जिसने सच्चा रिवाइवल देखा है, जो पीढ़ी बुज़ुर्गों की है, विश्वासियों की, उन्होंने देखे सच्चे सेवक जो साइकिलों पे घूम घूम के प्रचार करते थे, सच्चे कलाम की अलग जगाते थे। मैं ये नहीं कह रहा कि अब जब टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, हर चीज़ का विकास हुआ, तो आप उन चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, ये नहीं कह रहा मैं, लेकिन मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि उस जनरेशन के सच्चे खादम जो अपनी महिमा, अपने जलाल के लिए काम नहीं करते थे, अपनी संस्थाएं बनाने के लिए नहीं करते थे, अपनी किंगडम बनाने के लिए नहीं करते थे, अपने फैन फॉलोअर बनाने के लिए काम नहीं करते थे, यहोवा के लिए काम करते थे, उस जनरेशन को ये वायरस मार रहा है। और जो जनरेशन रह जाएगी, अगर उस जनरेशन को, पीढ़ी को परमेश्वर के सच्चे खादम सच्चा कलाम नहीं सिखाएंगे, तो यही हाल होगा जो 10 वचन के अंदर लिखा है। और पूरी की पूरी जनरेशन बालिमों की पूजा करेगी, अश्तोरेत की पूजा। ये बालिम और अश्तोरेत क्या हैं? ये आज की आपकी मॉडर्न थिंकिंग होगी, आज का आपका मॉडर्न विज्ञान, साइंस, टेक्नोलॉजी जिसे आप यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जिसे आप यूज़ करते हैं, आज की जो ओपिनियन मीडिया क्रिएट कर रहा है, आज की जो विचारधारा, ये नया कल्चर लेकर आ रहा है, ये वो हो सकती है। इसलिए हम यहोवा की ओर मुड़ें और क्या करें? क्या करना भाइयों और बहनों? सुने, यहां पे लिखा है 2 वचन, एंड ई शैल मेक नो लीग विद द इनहेबिटेंट्स ऑफ दिस लैंड। क्या कहा?
कि उनके साथ समझौता मत करना, उनके रीति रिवाज, उनकी परंपराएं, उनकी विचारधारा मत लेकर आना। चर्च तो ऐसे एकमेक हो गई संसार के साथ। एक प्रभु के दास ने कहा, C.S. लुइस ने, आई सॉ द चर्च इन द वर्ल्ड एंड आई सॉ द वर्ल्ड इन द चर्च। दे वर मिक्स्ड टू द एक्सटेंट दैट आई कुडंट सी हु वॉज द चर्च एंड हु वॉज द वर्ल्ड। एक्यूमेनिकल मूव आ रहा है, सीकर सेंसिटिव चर्च। ऐसा कलाम आ रहा है जिसमें आपने हेल का जिक्र नहीं करना, आपने जजमेंट शब्द नहीं बोलना, आपने रिपेंटेंस के विषय में बात नहीं करनी, आपने किसी को सिन के विषय में नहीं बोलना, आपने गुड चीज़ें लोगों को बतानी है, बहुत से बहुत लोगों को इकट्ठा करना है, एक एक्सेप्टेबल गॉस्पल प्रीच करनी है, गुड गॉस्पल, और लोगों के लिए बढ़िया बढ़िया प्रोफेसीज करनी है, सीकर सेंसिटिव चर्च बनाना है। हम फेमस हों, हमारी कलीसियाँ बहुत बड़ी हो जाएं, हमारा बहुत बड़ा नाम हो, ये एजेंडा है आज की झूठी कलीसिया का। ऑल एम्ब्रेसिंग, ऑल इंक्लूसिव चर्च, ऐसी टर्मिनोलॉजीज वो यूज़ करते हैं। भाई और बहनों, ये सबसे बड़ी डिसेप्शन आ रही है। यहाँ पे लिखा है बोकीम में ले आया। वेयरफॉर क्या लिखा है यहाँ पे? लिखा है, ई शैल नॉट मेक एनी लीग इनहैबिट देयर ऑल्टर्स बट ई नॉट ओबेड माई वॉइस, वाई हैव यू डन दिस? तुमने मेरी आवाज़ को नहीं माना। ये एंजल जीसस क्राइस्ट है जो कह रहा उनको। वेयरफॉर आई ऑल्सो सेड आई विल नॉट ड्राइव देम आउट फ्रॉम बिफोर यू बट you shall be as but they shall be as thorns in your sides and their gods shall be snare unto you। वो तुम्हारी साइड में कांटे चुभेंगे भैया। आप उनके बीच में रहे, आपने अपनी बेटियां उनके साथ ब्याह दी, उनकी बेटियां अपने बेटों के लिए ब्याह ली, एक में हो गए आपने सोचा एक रूह बचा लेंगे हम, लेकिन वो भी ये सोच रहा है एक रूह को मैं प्रभु के हाथों में से खींच के ले आऊँगा। वो भी कुछ सोच रहा है या सोच रही है। तो देखिए कैसे जनरेशन पूरी की पीढ़ी का विनाश हुआ। वचन में लिखा है, वो तेरी साइड में कांटे होंगे एंड देयर गॉड शैल बी स्नेयर। फंदा समझते हैं आप? एक फंदे के अंदर फंस गया है पंछी, छटपटा रहा है क्योंकि कोई छुड़ा नहीं सकता। ऐसे लोगों का जीवन है कईयों का, जिन्होंने अपने जीवन में कंप्रोमाइज़ किया है, जिन्होंने यहोवा की विधियों को, न्यायों को, यहोवा के वचनों को पाँव के नीचे मसला है। उन्होंने अपने जीवन में सही फैसले नहीं लिए। तो क्या लिखा है? एंड दे कॉल्ड द नेम ऑफ दैट प्लेस बोकीम। और क्या लिखा है? बोकीम, दे सेक्रीफाइस देयर अनटू द लॉर्ड। यहोवा के आगे क्या किया उन्होंने? कुर्बानियाँ चढ़ाई। बोकीम में प्रभु लाना चाहता है, रिपेंटेंस में, जहाँ विलाप है, जहाँ रोना है, उस जगह लाना चाहता है। आप चाहते हो प्रॉस्पेरिटी, आप चाहते हो रियल एस्टेट, आप चाहते हो हैवी बैंक बैलेंस, आप चाहते हो बहुत सारे देशों के वीज़े, आप चाहते हो हर मटेरियल ब्लेसिंग, लेकिन वो तो बोकिम में लेकर आ रहा है आपको। वो चाहता है आपका फंदा टूट जाए, वो चाहता है विलाप करें, सीखें विलाप करना, उसके चरणों में आएँ। आइए आंखें बंद करें, प्रार्थना करें। मुझे आप लोग दिखाई नहीं दे रहे हो, एनीवे आई एम स्टिल गोइंग टू प्रे। फादर, I pray that you will draw your people to Bokim. Lord, from Gilgal to Bokim, you will cut the flesh, the desires of the flesh. Flesh craves for the world and the worldly pursuits. You will cut it off, Father, the circumcision of the flesh, and you bring us to Bokim where we repent, where we cry, where we lament, where we groan before you. Father, where you cleanse our bloodline, where you wash our DNA, where you resequence our DNA, hallelujah. You edit our genomes, Father. You deliver us from the iniquities of our fathers and forefathers, that we do not fall in love with Baalim, that we do not fall in love with Baal, that we do not fall in love with Ashtoreth. Father, we destroy the groves and the high places. Father, every green tree under which your people did whoredom, Father, we cut those groves and those high places and those altars that are ugly and unclean, Father, and we turn towards you. तेरी और मुड़े तेरे लोग खुदावन, तुझे ढूंढे, तुझे तलाशें, सच्चे पश्चाताप के साथ, सच्चे प्रभु जी आपके वचन की रोशनी में अपने दिलों को तोड़ के तेरे पीछे आए खुदावन, बोकीम में, जहां से बेदारी आए खुदावन, ताकि वो शत्रु जो तेरे लोगों के अंदर रह रहे हैं अभी,
हरामकारी, जनाकारी, लुचपुना, गंदे काम, गंदी बातें खुदावन, वो नफलीम अंदर छुट गए, वो निकले नहीं, वो निकल जाएं खुदावन। तेरा धन्यवाद प्रभु, तेरी हजूरी का दूत तेरे लोगों के बीच में उतरे। खुदावन तेरा धन्यवाद, तेरी कलीसिया के अंदर बेदारी आए, सच्ची बेदारी, पवित्रताई और धार्मिकता की भूख पैदा हो खुदावन। ऐसा काम कीजिए। हालेलुया, महिमा आपके नाम को, यीशु मसीह के जलाली नाम में, आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आप सबको बहुत आशीष दे। द लॉर्ड ब्लेस यू ऑल। सबको जय यीशु मसीह की। आमीन।